A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject Business Studies. I hope all of you are studying and I hope all of you are healthy, wealthy and fine. Dear students, in the previous lecture, we have started our second chapter, that is forms of business organization. And dear students, in this chapter till now, what we have discussed, initially we have discussed about the introduction of forms of business organization divided into three parts: private sector enterprises, public sector enterprises and joint sector enterprises. And what was the private sector enterprises? The enterprises that are owned, controlled and managed by the private individuals are known as the private sector enterprises. For example, Infosys, for example, Reliance India Limited, all are the example of private sector concerns. Thereafter, we have discussed about the public sector enterprises. These were the enterprises which are owned and controlled either by the state government or central government. For example, SAIL, LIC and GAIL. And joint sector enterprises, the enterprises which are collectively, that means owned, controlled and managed by jointly by private entrepreneurs and government. After that, we have discussed about the forms of private sector enterprises. In that, we have completed our first concern topic, that is the sole proprietorship. It was a form of business that is owned, controlled and managed by a single person, and there were the features of sole proprietorship like single ownership, formation and closure, unlimited liability and so on. Thereafter, we have discussed about its merits such as quick decision, confidentiality, direct incentive, sense of accomplishment, easy to form and dissolve, and then disadvantages such as limited resources, limited life for business, unlimited liability and limited managerial skill. Till now we have discussed only this stuff, that means the introduction and the concept of sole proprietorship. Dear student, today in our 12th lecture we are going to start about the second topic of the chapter, that is the joint Hindu family business or Hindu undivided family business. So let's get started about that. Initially, we will understand the meaning of Hindu undivided family business or the meaning of joint Hindu family business. So, dear students, the business which is carried out by the members of Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. एक ऐसा बिजनेस जिसको कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, रन करती है, उस बिजनेस को हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं. See further, this kind of business is not governed by any industrial or company act. अब इस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कोई इंडस्ट्रियल लॉ नहीं है, कोई कंपनी लॉ नहीं है, बट देयर इज अ रेगुलेशन और इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट. इसको कौन गवर्न करता है? जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट है वही इसको गवर्न करता है. एंड इट इज द कंप्लीट नेम इज हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. ठीक है, जो कि किसके अंदर बना हुआ है? अंडर द सिचुएशंस ऑफ हिंदू लॉ. जो भी हमारा ये जो आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 से बना हुआ है, और यही क्या करता है? HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. सी फर्दर, देयर आर टू बेसिक कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. अगर आपको HUF स्टार्ट करना है या फिर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं, तो उसके लिए टू प्री कंडीशंस हैं. द फर्स्ट प्री कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स. क्या होने चाहिए? मिनिमम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है.
सेकेंड इसने आपको बताया एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? जिसको हम लोग बोलते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पुरखे होते हैं, उन्होंने जो हमें प्रॉपर्टी दी है, जो वेल्थ दी है, दैट इज नोन एज द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी उस पर्टिकुलर फैमिली के पास होनी चाहिए। आगे देखिए, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और वो जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसकी जो इनहेरिटेंस है, उसके जो वारिस हम लोग जो बोलें वो कौन होने चाहिए? जो मेल मेंबर्स हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वो होने चाहिए। सी फर्दर, द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो मेंबर्स जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, and who are entitled to get a share in the part of joint Hindu family business, और जिनको joint Hindu family business से क्या मिलता है? एक certain part मिलता है being active over there, उन particular people को या लोगों को हम लोग co-partners बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? co-partners, जिनका ancestral property पे right है और जिनका HUF में कोई भी शेयर उनका इंटाइटल्ड है, उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स बोलते हैं। बेटा यहाँ पे एक कंडीशन और है कि फैमिली अनडिवाइडेड होनी चाहिए। एज सुन एज फैमिली में पार्टीशन हो जाएगा या फैमिली डिवाइड हो जाएगी तो आपका HUF डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जिसका नाम ही है हिंदू अनडिवाइडेड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आगे अब हम लोग उसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। सी द वेरी फर्स्ट फीचर, दैट इज फॉर्मेशन। And C, for the formation of joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. ये भी हम लोगों ने conditions में देखा था कि at least 2 male members होने चाहिए और उनके पास कोई ना कोई ancestral property होनी चाहिए। आगे देखिए, business does not require any agreement as membership is by birth. यहाँ पे आपको कोई agreement, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको मेंबरशिप मिलती है वो कैसे मिलती है? बाय बर्थ। एज सुन एज यू टेक बर्थ इन द और एनी पर्टिकुलर चाइल्ड टेक बर्थ इन द फैमिली, वो इस पर्टिकुलर बिजनेस का मेंबर बाय बर्थ बन जाता है। एंड इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सेकेंड देखते हैं लायबिलिटी। सी ओवर हेयर, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। अब एक टर्म आया है बेटा कर्ता। हु इज कर्ता? तो पहले कर्ता को समझते हैं। कर्ता कौन है? द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको कर्ता बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बताया, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। जो in the previous class, Zoom class, I have told you people about the limited liability and unlimited liability. ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बताया, जो करता है, जो फैमिली का अटमोस्ट सीनियर मेंबर है, उसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी। whereas the liability of all other member, अब जो फैमिली के अदर मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। लिमिटेड कहाँ तक? अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस। जितना उनका बिजनेस में शेयर है उस लिमिट तक उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। ये इसने बताया आपको। आगे देखिए, द कर्ताज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो हिज पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग बैक द डेट्स ऑफ द बिजनेस। क्योंकि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसलिए अगर डेट्स पे ऑफ नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में कर्ता के शेयर में जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी आती है उस पे आउटसाइडर्स क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोल। सी द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता। जस्ट राइट नाउ आई हैव डिस्कस विद यू। ओनली द कर्ता हैज़ द लीगल राइट्स टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। अब कर्ता ही वो पर्टिकुलर पर्सन है जो कि आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, गुड्स की सप्लाई करना। आपने अगर सपोज कर लेते हैं लोन लिया है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करना। फॉर एवरीथिंग ओनली कर्ता इज हैविंग द राइट। आगे देखिए, ही ओनली टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। अब कर्ता ही वो सिंगल पर्सन है जो कि बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है। एंड दैट इज वाई अगर प्रीवियस पॉइंट में जाएं तो कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। आगे देखिए इसने बताया, अदर मेंबर्स हैव
नो राइट टू टेक डिसीजंस, जो अदर मेंबर्स हैं उनका मैनेजमेंट में कोई भी राइट नहीं है पार्टिसिपेट करने का, दे आर जस्ट एग्जीक्यूटर्स। कर्ता उनसे जैसा वर्क करने को बोलेगा उनको उस वर्क को सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, दे डोंट यूज टू टेक द डिसीजंस। नेक्स्ट देखिए माइनर मेंबर। माइनर कौन होता है? लेस देन 18 इज कंसिडर्ड एज माइनर। सी ओवर हेयर, इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ ओनली। जैसे ही बर्थ होता है फैमिली में, वो पर्टिकुलर मेल मेंबर जो है वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। सो देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द माइनर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। इसलिए इस बिजनेस में माइनर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन मेंबर बन सकता है। बट अगर अभी हम लोग बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, देयर यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज द रिस्ट्रिक्शन फॉर द एडिंग ऑफ द minors. Now see a note over here that is about the gender equality in the joint Hindu family business. ठीक है, अब इस नोट में क्या बताया इसने वो देखते हैं. In December 2004, a bill was passed in the parliament to amend the Hindu Succession Act. पूरे HUF को हिंदू सक्सेशन एक्ट कंट्रोल करता है, तो 2004 दिसंबर में एक एक्ट पास हुआ, एक बिल पास हुआ. इस एक्ट को क्या करने के लिए? अमेंड का मतलब होता है लीगली चेंज करने के लिए. अब इसमें क्या हुआ देखते हैं. सेकंड पॉइंट, इन दिस अमेंडमेंट विमेन आर गिवन इक्वल राइट्स इन द हिंदू फैमिली बिजनेस. अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ मेल मेंबर्स की बात हो रही है, तो इस अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, जितना राइट्स मेल मेंबर्स को मिला उतना ही इक्वल राइट किसको मिला? फीमेल मेंबर्स को भी दिया गया. थर्ड पॉइंट, दिस बिल वॉज पास टू रिमूव. अब देखिए बता दिया इसने क्या कहा. दिस बिल वॉज पास टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का 1956 का सेक्शन 6 था, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मेल मेंबर्स जो थे वो क्या बन सकते थे? बिजनेस के को पार्टनर्स या को पार्टनर्स बन सकते थे. लेकिन इस बिल ने, जो कि 2004 दिसंबर में पास हुआ, क्या किया? गिविंग इक्वल राइट्स टू द डॉटर्स एज द सन्स हैव. जितने राइट्स सन को थे उतने ही इक्वल राइट किसको दिए? डॉटर्स को भी दिए. लास्ट पॉइंट देखिए. नाउ एज पर मिताक्षरा एज वेल एज पर दया भागा, फीमेल कैन बिकम द को पार्टनर्स लाइक द मेल मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ये दो कॉन्सेप्ट हैं, दया भागा और मिताक्षरा, जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए. दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ द HUF. अब दोनों के अकॉर्डिंग जो आपकी फीमेल मेंबर्स हैं वो बिजनेस में को पार्टनर्स बन सकती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. Today we have discussed about the meaning of joint Hindu family business, conditions for the existence of joint Hindu family business, and in the last we have discussed about the different features of joint Hindu family business such as formation, liability, control and minor member. And in the last we have discussed a note about the gender equality in the joint Hindu family business. This is all about today. God bless you all. Lots of love.